دور کی پہاڑیوں پر برف چمک رہی تھی اور غروب ہوتے ہوئے سورج نے ان پر ڈھیروں رنگ بکھیر دیا تھا۔ چمکدار نارنگی رنگ جس کی چھوٹ میلوں گہری وادی میں پڑ رہی تھی۔ موسم سرما کا چل چلاؤ تھا۔ خضرو جھاڑیوں میں رنگا رنگ کلیاں پھوٹنے لگی تھیں اور سارا دن چھوٹے موٹے پرندے منڈلایا کرتے۔ رام گڑھ میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہوٹل آباد ہونے لگے تھے۔ آنے والوں میں اندرون ملک کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ غیر ملکی سیاح خال خال ہی دکھائی دیتے۔ ویسے اس وقت تو ان کی بہتات ہوتی ہے جب میدانوں میں گرم ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ بہرحال دور کی پہاڑیوں میں برف چمک رہی تھی اور کیپٹن حمید فضاروں کی بالکنی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ آخر وہ برف کب پگھلے گی جو خود اس کی کھوپڑی میں جمی ہوئی ہے۔ برف پگھلنے شاید سمجھ میں آ سکے کہ وہ یہاں کیوں پایا جاتا ہے۔ چند راتیں گزریں، وہ اپنی خوابگاہ میں سو رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنی شروع ہوئی۔ بور ہو کر پہلے کان دبائے، جب اس سے بھی مقصد حاصل نہ ہوا تو تکیہ سر کے نیچے سے اوپر آ گیا، لیکن گھنٹی کی آواز کہاں پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ بالآخر جھلنا کر اٹھ بیٹھا اور ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں اس طرح دہاڑا تھا کہ اس کی دانست میں دوسری طرف والے کے کان کا پردہ خطرے میں پڑ گیا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف کی ٹھنڈی سی آواز نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ آواز فریدی کی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، فوراً لیبارٹری میں آ جاؤ۔ بے اختیار حمید کی نظر ٹائم پیس پر پڑی۔ 3 بجے تھے۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا پھر سو گئے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں، اعمال نامہ اٹھائے میدان حشر کی طرف دوڑ لگا رہا ہوں۔ 10 منٹ کے اندر اندر پہنچو، دوسری طرف سے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ اور پھر جب وہ لیبارٹری میں پہنچ تو گیا تھا کسی نہ کسی طرح۔ اونگتے ہوئے زینے طے کیے تھے، لیکن لیبارٹری سے واپسی پر ایک بار پھر آئینہ دیکھا تھا۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑی تھیں اور جھللا کر کہا تھا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ فریدی نے پلاسٹک کے ٹکڑے چپکا کر اس کی شکل اس حد تک تبدیل کر دی تھی کہ اسے اپنی آنکھوں میں اجنبیت نظر آنے لگی تھی۔ نہ صرف صورت بدلی تھی بلکہ نام تک بدل گیا تھا۔ اب وہ کیپٹن ساجد حمید کے بجائے میجر سعید تھا اور اس کی جیب میں 2 گھنٹے کے بعد والی فلائٹ کا ٹکٹ بھی موجود تھا۔ فریدی نے بتایا تھا کہ رام گڑھ کے ہوٹل فضاروں میں اس کے لیے اسی نام پر کمرہ بک ہے۔ بس اسے وہاں پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع دینی پڑے گی۔ ظاہر ہے اس نے مقصد معلوم کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی، لیکن وہ اب بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اسے عافیت اسی پر نظر آئی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے چپ چاپ اس پر عمل کرے۔ وہ فریدی تھا، اسے گوشت کی کسی دکان پر بٹھا کر قیمے کی مشین کا ہینڈل گھمانے پر بھی مجبور کر سکتا تھا۔ آخر کچھ دنوں پہلے تک وہ ایک لیڈیز ٹیلرنگ شاپ کی مینیجری کرتا ہی رہا تھا، اس کا علم ہوئے بغیر کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ درزیوں اور درزنوں کے ساتھ سر کھپاتا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک دن درزی خانے میں تالا پڑ گیا تھا اور حمید کو پھر یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اس میں کام کرنے والوں اور والیوں کو زمین ہڑپ کر گئی تھی یا وہ عالم بالا کی طرف پرواز کر گئے تھے۔ ماہر نفسیات لڑکی رضیہ اکثر یاد آتی، جس سے وہ خار بھی کھاتا تھا اور کسی قدر لگاؤ بھی محسوس کرتا تھا۔ پھر اس نے کتنا ہی سر مارا تھا کہ اس حماقت کے آغاز و انجام کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے، لیکن کامیابی نہیں آئی تھی۔ فریدی اس کی بات صاف اڑا جاتا۔ بہرحال درزی خانے سے رام گڑھ کے ہوٹل تک پہنچنے کا وقفہ 2 ماہ سے زیادہ نہیں تھا۔ ابھی فضاروں کے سارے کمرے آباد نہیں ہوئے تھے، پھر بھی خاصی چہل پہل تھی۔ ویسے فضاروں میں قدم رکھتے ہی اسے اچانک ذہنی جھٹکے سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس ذہنی جھٹکے کا سبب وہ لڑکی تھی جسے رضیہ کے نام سے وہ پہلے ہی سے جانتا تھا، وہی ٹیلرنگ شاپ والی رضیہ جو اسے نفسیات پر بور کیا کرتی تھی۔ لیکن وہ رضیہ یہاں فضاروں کے ڈائننگ ہال میں اور ہی دھجی میں نظر آئی تھی۔ جدید ترین مغربی لباس میں تھی۔ سرخی پاؤڈر پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا، حالانکہ درزی خانے میں حمید نے اس کے چہرے پر کبھی پاؤڈر کی ہلکی سی تہ بھی نہیں دیکھی تھی۔ لپسٹک تو سرے سے استعمال ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اب خدا کی پناہ ہونٹ تھے یا خون کبوتر، آرائش گیسو کا اسٹائل بھی بدلا ہوا تھا۔ بہرحال حمید اس کو رضیہ باور کر لینے سے ہچکچایا بھی تھا۔ ویٹروں سے وہ انگریزی میں گفتگو کرتی تھی، لہجہ ایرانیوں کا سا تھا۔ حمید کو تو خیر وہ یوں بھی نہ پہچان سکتی، کیونکہ درزی خانے میں بھی وہ میک اپ ہی میں رہا تھا۔ وہ اسے بار بار آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا، کبھی سوچتا رضیہ ہی ہے، کبھی خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ 2 افراد میں اس قدر مشابہت بھی ممکن ہے کہ کارخانہ قدرت میں کوئی بات بھی انہونی نہیں۔
लेकिन फिर उसकी एक कमजोरी भी यकलक मुशाहिदे में आई। रजिया कुछ सोचते वक्त अपने कान को चुटकी में दबाए आहिस्ता आहिस्ता मसलते रहने की आदी थी, लिहाजा ये हरकत अब भी जारी थी। वो थोड़े थोड़े वक्फे से अपना यह शक्ल दोहराती रहती। बहरहाल यहाँ उसकी मौजूदगी पर हमीद को संजीदा हो जाना पड़ा। उसे अच्छी तरह याद था कि टेलरिंग में वो दिन भर उससे उलझती रहती थी, अक्सर गाहों से लड़ भी बैठती। हमीद को वो पुरवकार औरत याद थी जिससे उसका झगड़ा शलवार की मोरियों पर हुआ था। उसका कहना था कि मोरियों में बुकरम रखा नहीं गया। रजिया बज़िद थी कि औरत गलत कह रही है। आखिरकार दूसरी लड़की फरजाना ने उस दिन से बुकरम का काम खुद संभाल लिया था और फिर मुस्तकिल तौर पर वही उस फर्ज को अंजाम देती रहती थी। और ये भी हकीकत ही थी कि उसके बाद से बुकरम के सिलसिले में कोई शिकायत नहीं आई थी। हमीद का ख्याल था कि यहाँ उसकी अजनबियत उसके लिए सुहाने रूह बन जाएगी। दरअसल बात यह थी कि उसकी शक्ल देखते ही कोई नफसियाती बखेड़ा कर बैठने को जी चाहता था, लेकिन वो तो उसकी तरफ मुतवज्जा तक नहीं हुई थी। हाँ, तो उस वक्त हमीद फिजारों की दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा डूबते हुए सूरज की रंग अफशानियों में खोया हुआ था। बड़ी खूबसूरत शाम थी। पूरी घाटी पर उफक से उभरने वाले नारंगी रंग की छूट पड़ रही थी। दफतन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस तूफान रंग नूर का कोई हिस्सा अपने सिलसिले से कटकर मुतहर्रिक हो गया हो। नारंगी रंग का वो हिस्सा तेजी से फिजारों की तरफ बढ़ता आ रहा था। हमीद ने गर्दन से लटकी हुई दूरबीन संभाली और उसे आंखों तक लाया। ओह वाह, बेख्तियार उसकी जुबान से निकला। वो तो एक दुबली पतली सी लड़की थी, नारंगी रंग के कोट में मलबूस। और जब दूरबीन के शीशे पूरी तरह एडजस्ट हो गए तो वो गुड़िया सी लड़की बड़ी दिलकश नजर आई। बहुत ही दिलकश, इतनी दिलकश कि बेख्तियार जुबान से हक है का नारा सरजद हो गया। वो फिजारों की हुदूद में दाखिल हो गई थी। लेकिन ये क्या, कोई और भी तो था जिससे वो नारंगी वाली लड़की बेखबरी में उसके पीछे लग गई हो। लेकिन ये क्या, कोई और भी तो था जैसे वो नारंगी रंग वाली लड़की की बेखबरी में उसके पीछे लग गई हो, क्योंकि वो नारंगी कोट वाली लड़की दफतन चलते चलते रुककर पीछे मुड़ी थी और ताक़ुब करने वाली इस तरह जमीन पर झुक गई थी जैसे कोई गिरी हुई चीज उठा रही हो। नारंगी कोट वाली लड़की फिर तेजी से हमारी तरफ चल दी। ताक़ुब करने वाली अब सीधी खड़ी थी। हमीद ने दोबारा शीशे एडजस्ट किए और चौंक पड़ा। ताक़ुब करने वाली वही लड़की रजिया थी। ऐसी मुशाबहत अभी तक तो उसके तजर्बे में नहीं आई थी कि आदत व अतवार तक एक दूसरे से मुमासलत रखते हों। ये नारंगी कोट वाली लड़की जिसका ताक़ुब कर रही थी अभी तक फिजारों में नहीं दिखाई दी थी। हो सकता था कि उसके दौरान क़याम से कबल वहां आती रही हो। उसने अपने कमरे में वापस आकर दूरबीन रखी और नीचे जाने की तैयारी करने लगा। वो उस दुबली सी लड़की को करीब से देखना चाहता था। वो डाइनिंग हॉल की एक मेज पर नजर आई। सामने चायदानी रखी थी। लड़की का चेहरा पुरसुकून था। ऐसा नहीं लगता था कि उसे उस ताक़ुब का इल्म रहा हो। डाइनिंग हॉल में रजिया कहीं ना दिखाई दी। उस वक्त पूरे हॉल में हमीद समेत सिर्फ 2 अफराद थे। हमीद ने लड़की को चाय उंडेलते देखा। कुछ अजीब सा चेहरा था उसका, जो किसी जाविये से बेहद मासूम नजर आता था और किसी जाविये से उसमें जहानीदगी की झलकियां भी दिखाई देती थीं। होठों में रह रहकर हल्की हल्की जुम्बिश होती और बिल्कुल ऐसा ही लगता जैसे जहन में चकराने वाले सोच बातों को होठों तक आने से रोक देने की कोशिश कर रही हो। हमीद ने अपने लिए उसके करीब ही की एक मेज मुंतखब की थी और उसे अच्छी तरह देख सकता था। चाय की पहली चुस्की लेकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और शकरदान से शक्कर निकालने लगी, जैसे शक्कर डालना भूल गई थी। खफीफ सी मुस्कुराहट और सोच में डूबी हुई आंखों ने उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा तासर पैदा कर दिया था। वो उसे चाय पीते देखता रहा। क्या वो कहीं बाहर से आई है, उसने सोचा। लेकिन बाहर से आई होती तो पैदल ना होती। स्टेशन से यहाँ तक मुसाफत रिक्शे के बगैर तय करना मुश्किल ही था। दफतन इमारत के किसी गोशे में एक जोरदार धमाका हुआ और वो उछल पड़ी। प्याली हाथ से छूटकर उसके ऊपर उलट गई थी और दूसरे ही लम्हे में भला हमीद उसके करीब क्यों ना नजर आता। ठहरिए ठहरिए, उसने जल्दी से कहा। यूं ही बैठी रहिए वरना ये नामाकूल चाय। फिर रुमाल जेब से निकालकर उसकी तरफ झुका ही था कि वो उठ खड़ी हुई। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, वो खौफजदा लहजे में बोली। ये धमाका कैसा था? धमाका? हमीद ने हैरत जाहिर करते हुए कहा। कैसा धमाका? ये भी हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। धमाके ही की बिना पर तो अच्छी बात है, ठहरिए मैं देखता हूँ।
इतनी देर में काउंटर क्लर्क अपनी जगह से गायब हो चुका था। बकिया 3 आदमी भी आवाज की तरफ दौड़े गए थे। हॉल में अब उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। दफतन वो हाथ उठाकर बोले, ठहरिए, मैं तन्हा रह जाऊंगी। जी हाँ, वाकई कैसी भूल होने वाली थी मुझसे। वो लोग जो गए हैं मालूम ही कर लेंगे। जी हाँ, ये बात तो है। क्या मैं आपको खौफजदा मालूम होती हूँ? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आप एक बाहिम्मत लड़की मालूम होती हैं। शुक्रिया, अब यहीं बैठ जाइए, नारंगी कोट वाली ने कहा और खुद भी बैठ गई। हमीद का रुमाल उसके हाथ में था जिसे वो अपने कोट के दामन पर फेरे जा रही थी, और वो सोचकर कि लड़कियों के मामले में वाकई उसके सितारे बेहद शानदार हैं। लेकिन वो धमाका, धमाका कैसा था? इमारत के किसी करीबी ही हिस्से से आवाज आई थी। जरा ही सी देर बाद काउंटर क्लर्क ने काउंटर के करीब खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, कोई परेशानी की बात नहीं जनाब। किचन में एक ऑयल स्टोव फट गया था, किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। देखा आपने, हमीद ने उससे कहा, इसीलिए मैंने उसकी तरफ तवज्जो देने का हक महफूज रखा था। वो फिर हंस पड़ी और बोली, मैं नस्लन चंगेजी हूँ। यकीनन ऐसा ही होगा। कुछ देर पहले मैं बहुत खौफजदा था। क्यों? आपको देखकर हैबत सी छा गई थी मुझ पर। ऐसा महसूस होता था जैसे दिल के बगदाद पर तातारियों ने हमला बोल दिया हो। उसकी बेआवाज हंसी बड़ी दिलकश थी। ये स्टोव कैसे फट जाते हैं? उसने कुछ देर बाद पूछा। मेरा ख्याल है कि उसका बॉयलर, स्टोव में बॉयलर का क्या काम? नहीं होता, हमीद ने मुतहय्यराना लहजे में पूछा। कतई नहीं। तब तो शायद मैं जानता ही नहीं कि स्टोव क्या चीज़ है। फिर आपको किस तरह बताऊं कि कैसे फट जाता है? मुझे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। अब तावख्तिया मुझे गुस्से की सही तारीफ ना मालूम हो जाए, अपनी जुबान बंद ही रखूंगा। अरे, वो यकबैक चौंक कर बोली, आप मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? अपनी मेज़ पर जाइए। बहुत बेहतर, हमीद ने सआदत बंदी का मुजाहरा करते हुए कहा और अपनी मेज़ पर वापस आ गया। वो दूसरी तरफ देखती रही, फिर थोड़ी देर बाद उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई। ना सिर्फ मुस्कुराई बल्कि उठकर सीधी उसी की मेज़ पर चली आई। अब आप मुझे भगा दीजिए, वो कुर्सी खींचकर बैठते ही बोली, बदला हो जाएगा। मैं चंगेजी नहीं हूँ, हमीद ने ठंडी सांस लेकर कहा। ओह, आप तो सचमुच बुरा मान गए। मैं बहुत परेशान हूँ। चेहरे से तो परेशानी नहीं जाहिर होती। बस मैं हर वक्त खुद को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। आप कहाँ से आए हैं? चीफ पोर्ट से। शिकारी हैं? ला हौल वला कुव्वत। क्या मतलब? क्या मैं सूरत से शिकारी लगता हूँ? नहीं, सूरत से तो शरीफ आदमी मालूम होते हैं। वो हंस पड़ी। मैं एक बहुत बड़े शिकारी का सेक्रेटरी हूँ। शिकारी भी सेक्रेटरी रखते हैं? शिकारी ही तो सेक्रेटरी रखते हैं। मैं नहीं समझी। आप यहीं मुकीम हैं? हमीद ने मौजू बदलने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मैंने तो आज ही देखा है। ज्यादातर अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। आप भी बाहर ही से आई हैं? जी हाँ, नसीराबाद से। लोगों का ख्याल है कि मेरे डैडी झक्की हैं, वरना इस मौसम में यहाँ क्यों आते हैं? रामगढ़ की सर्दियाँ तो रह रह कर पलटती हैं। यही वजह है कि लोमड़ियों के शिकारी अभी तक यही मुकीम है। शिकारी हैं? अरे नहीं, वो बेचारे तो नसीराबाद के नेशनल कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। खूब। आपको बिल्कुल यकीन नहीं आया? बिल्कुल आ गया। ना आने की क्या वजह हो सकती है? मैं आपकी आंखों में बेतबारी देख रही हूँ। आंखों पर ना जाइए, ये अमूमन धोखा देती हैं। मैं लोगों की आंखों से पहचान लेती हूँ कि वो कैसे हैं। और अगर किसी बेचारे की एक ही आंख हो तो? ओहो, तो क्या मैं सारे जमाने की आंखें देखती फिरती हूँ? मेरी आंखों में क्या नजर आया आपको? आप बहुत अच्छे आदमी हैं। एक आंख पत्थर की है, वाजा रहे। नहीं नहीं, तो वो हंस पड़ी। गौर से देखिए। वो आगे झुकाई और हमीद ने बौखलाकर कहा, कहीं आपके डैडी ना आ जाए। सीधी बैठिए। डैडी यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? केमिस्ट्री के सिलसिले में कोई नया तजर्बा कर रहे हैं। उसके लिए फिजा में एक मखसूस हरारत, दर्जा हरारत चाहिए, और वो उस दर्जा हरारत की तलाश में सतह समंदर से कुछ और ऊपर चले गए हैं। उन पहाड़ों पर जहाँ अब भी बर्फ दिखाई देती है। क्या समझे? वो मशक्कत उड़ाने के अंदाज में हंसने लगी। आपको यहाँ तन्हा छोड़ गए हैं? मैं तन्हा कब हूँ, इतने लोग और मौजूद हैं। मैंने यहाँ एक गैर मुल्की लड़की भी देखी है, हमीद ने कहा। गालिबन ईरानी ही हो सकती है। वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। क्यों? क्या आपको उसका तस्करा भी नागवार गुजरा है? बिल्कुल, मुझे नकचढ़े लोग पसंद नहीं। वो बहुत मगरूर मालूम होती है। मगरूर? ये कैसे कह सकती हैं आप? मैंने एक आध बार उसे मुतवज्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका रवैया तौहीन आमेज हो गया था।
ओह, तो क्या उसने आपसे गुफ्तगू करना पसंद नहीं किया था? बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी थी। मुमकिन है उसे उर्दू ना आती हो। तो क्या आपने उसे उर्दू में मुखातिब किया था? अंग्रेजी आती है आपको? हमीद ने चिढ़ाने के लिए हैरत जाहिर की। अब आप मेरा मसका उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप गलत समझी। दरअसल आप सूरत से, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपकी शक्ल बिल्कुल मौलवियों जैसी है। इसलिए मैंने सोचा। ये मौलवियों जैसी शक्ल कैसे होती है? उसने कदर तुरश लहजे में पूछा। मौलवियों जैसी यानी कि बस मौलवियों जैसी। उस अजमाल की तफसील हमीद के बस से बाहर थी, इसलिए हकलाना ही पड़ा। उस पर लड़की ने कई ऐसे मौलवियों के नाम गिनवाए जिन्हें अंग्रेजी आती थी, लिहाजा हमीद ने तस्लीम कर लिया कि उसकी शक्ल मौलवियों जैसी नहीं थी। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो मौलवियों का मसका उड़ाते हैं, लड़की ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। हमीद ने यह सोचकर बात उड़ा देनी चाहिए कि बाज लोग मजहब के मामले में बड़े जज्बाती होते हैं। नहीं, आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि आप गलत रास्ते पर हैं, वो झुंझला कर बोली। भला आपको मेरे रास्ते का इल्म क्यों कर हुआ? आप उन लोगों में से मालूम होते हैं जो मौलवियों की जिहालत का मातम करते हुए अपनी लाशों पर से भी गुजर जाते हैं। भाई, ये फिल्सफा मेरी समझ में नहीं आया। वैसे ये डायलॉग था कुछ फिल्मी अंदाज का। क्या आप फिल्में बहुत देखती हैं? यकीनन देखती हूँ। फिर आप गलत रास्ते पर हैं। क्यों? मौलवियों से पूछिए। वो चंद लम्हे हमीद को घूरती रही, फिर हंसकर बोली, दरअसल मैं बहुत बातूनी हूँ। कई दिनों से कोई मिला नहीं था। वो खामखा हंसती रही। अच्छा, तो अब हम उस ईरानी लड़की के बारे में बातें करेंगे, हमीद ने कुछ देर बाद कहा। क्यों क्यों? वो यहाँ कब से मुकीम है? मैं क्या जानूं, जब मैं आई थी तो उसे यहीं देखा था। उसी दिन या दूसरे दिन? मुझे याद नहीं, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। मेरी नज़रों में उसकी क्या अहमियत है कि उस तरह याद रखती? क्या ख्याल है, वो तन्हा ही है या कोई और भी है उसके साथ? अरे, तो क्या मैं उसकी टोह में रहती हूँ? कुदरती बात है मोहतरमा, उसका सलूक आपसे अहानत आमेज था। मैं जूते की नोक पर मारती हूँ ऐसों को। मैं क्यों रहने लगी टोह में? खैर खैर, गोली मारिए। मैं शिकारी नहीं हूँ, वो मुस्कुराई। अच्छा, अगर वो आपकी टोह में रहती हो तो फिर? मैं कहती हूँ इस गुस्से को खत्म कीजिए, वरना मैं उठकर चली जाऊंगी। खत्म? खत्म, बिल्कुल खत्म। मैंने भी आपको आज से पहले यहाँ नहीं देखा। आप कब से मुकीम हैं? लड़की ने पूछा। कई दिन से, हमीद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन मेरे डैडी ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी कि अपने कमरे ही तक महदूद रहे। तो मेरे ही डैडी ने कब दी है? वो फिर झुंझला गई। दर्जा हरारत बढ़ रहा है। खुदा आपको फिर सतह समंदर से काफी ऊंचाई पर पहुंचा है। मैं अब कतई ना बोलूंगी। फिर आप किस किस्म की बात होनी है? वो सचमुच कुछ न बोली, चेहरे पर कबीदगी के आसार थे। अब मैं शिद्दत से बोर हो रहा हूँ, हमीद कुछ देर बाद बोला। क्यों? किससे बातें करूं? वो हंस पड़ी। हमीद को अजीब सी लगी वो लड़की। मूड तब्दील करने में देर ही नहीं लगती थी। अभी शिकन है माथे पर और अभी आंखें कवल की तरह खिल गईं। उनमें मुसर्रत नाचने लगी। दफतन वो उछलकर खड़ी हो गई। डैडी! वो उसकी चीख थी। फिर हमीद ने उसे सदर दरवाजे की तरफ झपटते देखा। सदर दरवाजे में एक अजीब उल खलकत आदमी खड़ा नजर आया। उसका कद 5.25 फीट से ज्यादा ना रहा होगा। दाढ़ी और सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। नहीफुल जस्सा भी था। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसका पूरा चेहरा दाढ़ी समेत खून से तर था। दो आदमी सहारा दिए हुए उसको डाइनिंग हॉल में ला रहे थे। डैडी, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? वो फिर चीखी। उधर हटिए, हमीद ने उसका बाजू पकड़कर एक तरफ हटाते हुए कहा। आप इधर हटिए, हमीद ने उसका बाजू पकड़कर एक तरफ हटाते हुए कहा। आप देख नहीं रही हैं कि वो खुद से चल भी नहीं सकते? कमरे की तरफ चलिए। हमीद महसूस कर रहा था कि बूढ़े पर नीम बेहोशी किसी कैफियत तारी है। आंखें फटी हुई थीं और वह इस तरह पलकें झपका रहा था जैसे कुछ सुझाई ना दे रहा हो। उनका कमरा भी दूसरी ही मंजिल पर था, इसलिए बूढ़ों को हाथों पर उठाकर जीने तय किए गए। कमरे में पहुंचकर लड़की ने बड़ी तेजी से बिस्तर दुरुस्त किया। फिजारों का मैनेजर भी उनके साथ यहाँ तक आया था और बूढ़े को गहरी तशवीश के साथ देखता रहा था। ये हुआ कैसे? उसने उन दोनों आदमियों से पूछा जो प्रोफेसर के साथ आए थे। ये हमें भरतू नाले के करीब पड़े मिले थे, एक ने जवाब दिया। होश में थे और उन्होंने खुद ही हमें यहाँ का पता दिया था। हमीद ने बूढ़े की तरफ देखा। वह बिस्तर पर चित पड़ा था, आंखें बंद थीं। आंख हमीद ने मैनेजर से कहा, डॉक्टर का फोन कीजिए। मेरे लिए कोई नई बात नहीं, उसने लापरवाही से जवाब दिया। क्या कहा? क्या मतलब? अरे साहब, आप अपना काम कीजिए, आपसे क्या सरोकार।
आप होश में हैं या नहीं? बिल्कुल होश में हूँ और आपसे इस्तदा करूंगा कि ख्वामखा दूसरे का मामलात में दखल अंदाजी मत कीजिए। हमीद ने लड़की की तरफ देखा। वैसे मैनेजर का लहजा उसे इतना गिरा गुजरा था कि शायद उससे मार बैठता, लेकिन उस बेतुकी सिचुएशन को समझना भी तो था। ये ठीक कह रहे हैं, लड़की बोली। क्या ठीक कह रहे हैं? ये डैडी को अच्छी तरह जानते हैं। मैं कुछ नहीं समझा। आप लोग बराह करम मेरे साथ आइए, मैनेजर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। इशारा उन दोनों की तरफ भी था जो बूढ़े को यहाँ तक लाए थे। हमीद ने मुनासिब समझा कि फिलहाल उसी के मशवरे पर अमल किया जाए। मामलात को समझना भी तो था, लेकिन उसे यकीन था कि लड़की ये नहीं चाहती। कम से कम वहाँ उसकी मौजूदगी की मुतमन्नी थी। उसने लापरवाही से शाने झटकाए और मैनेजर के पीछे चल पड़ा। फिर वो तीनों मैनेजर के ऑफिस में दाखिल हुए, लेकिन हमीद के कदम ठिठके थे। रजिया वहाँ मौजूद थी, एक आराम कुर्सी पर नीम दराज कोई किताब देख रही थी। ओह, आप यहाँ हैं? मैनेजर ने अंग्रेजी में हैरत जाहिर की। हाँ, उसने लापरवाही से जवाब दिया। इधर निकली आई थी, तुम नहीं थे, किताब उठा ली और देखने लगी। क्या यहाँ मेरी मौजूदगी गैर जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैनेजर जल्दी से बोला। रजिया रजिया, हमीद एक बार फिर उलझन में पड़ गया। ये 100% रजिया की आवाज़ थी, सिर्फ लहजा बदला हुआ था। वो फिर किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैनेजर ने उन दोनों से पूछा, आपकी दानिश में इसका मुआवजा कम से कम कितना होना चाहिए? हमारे 20 रुपये खर्च हुए हैं यहाँ तक लाने में। मैनेजर ने मेज की दराज से 10-10 के 3 नोट निकाले और उनकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, 30 ले जाइए, शुक्रिया। एक ने हाथ बढ़ाकर रुपये लिए और उन्हें जेब में रखता हुआ बोला, मेरा पता लिख लीजिए, अगर पुलिस वगैरह का कोई चक्कर हो तो हमें बुलवा लीजिएगा। वो सब ठीक है, मैनेजर ने दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर कहा। वो दोनों चले गए और हमीद ने महसूस किया कि मैनेजर उसे उकताई हुई नज़रों से देख रहा है। अब आप फरमाइए जनाब, बिलाखिर उसने उससे पूछा। मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, हमीद का जवाब था। क्या सुनना चाहते हैं? ये सब क्या था? मैं नहीं समझ सकता कि आपको क्या परेशानी है। आप यहाँ कब से मुकीम हैं? 3 दिन से। उन लोगों को कब से जानते हैं? आपको इससे क्या सरोकार? हमीद झिंझला गया। बस साबित हुआ कि आप उन लोगों को सिर्फ 3 दिन से जानते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं 3 साल से जानता हूँ, मैनेजर मेज पर हाथ रखकर दहाड़ा। हमें तो उसमें खफा होने की क्या बात है? क्या तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? रजिया ने चौंक कर अंग्रेजी में पूछा। उसके चेहरे पर सरासीमगी के आसार थे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैनेजर ने दांत निकाल दिए। आप मुझसे गुफ्तगू कीजिए। हमीद ने उसे फिर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। आपसे क्या गुफ्तगू करूं? जाइए, आराम कीजिए, अभी मेरे आराम का वक्त बहुत दूर है, हमीद ने कलाई की घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। मैं कहता हूं कि आखिर आप। बस, हमीद ने हाथ उठाकर उसे घूरते हुए कहा। यहाँ पता नहीं क्या ड्रामा हो रहा है। क्या यह आपका फर्ज नहीं है कि आप उस हादसे की इत्तला पुलिस को दें? आपसे मतलब? मैनेजर ने फिर आंखें निकाली। अच्छा, तो अब मैं खुद ही। जी जी, तो फिर आप खुद ही क्या? हमीद ने महसूस किया कि वह एक नर्वस किस्म का आदमी है। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और वो मुस्तवाना अंदाज में मेज पर रखी हुई चीज़ों की जगह तब्दील कर रहा था। मैं खुद ही उस वाक़े की इत्तला पुलिस को दे दूंगा, हमीद ने पुरसुकून लहजे में कहा। फिर आप जानिए, जब तक वो जख्मी आदमी खुद ही अपनी कैफियत बताने के काबिल ना हो जाए, आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कौन रोकेगा? मैं कहता हूँ, आपको उससे क्या, सबसे ज़्यादा फिक्र उसकी लड़की को होनी चाहिए। लड़कियां फिक्र करने के लिए नहीं पैदा हुई, उन्हें बेगम देखना चाहता हूँ। तो फिर उसी से जाकर पूछिए, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छी बात है, मैं उसी से पूछूंगा। हरगिज नहीं, आप मेरे किसी भी ग्राहक के आराम में खलल नहीं डाल सकते। कौन रोकेगा मुझे? देखिए देखिए हजरत, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन यह ना भूलिए कि यहाँ बहुत ही खतरनाक किस्म के शिकारी भी मुकीम है, जिनसे मैं दोस्ताना ताल्लुकात रखता हूँ। बहुत खूब, मैं उनकी ज़ियारत से भी महरूम ना रहूंगा, हमीद ने तंजिया लहजे में कहा। वो यहाँ के शिकार और शिकारियों से बखूबी वाकिफ था। सर्दियों भर यहाँ बड़े बालों वाली लोमड़ियों का शिकार होता है। मुल्क के तिजारती फर्मों के मुलाजिम पेशा पर शिकारी इसमें हिस्सा लेते हैं। उस सिलसिले में मुखालफतें भी होती हैं। फिर राइफलों का रुख लोमड़ियों की तरफ से आदमियों की तरफ फिर जाता है। शिकारियों की तादाद कम होती रहती है, लेकिन लाशें तो उसी वक्त मिलती हैं जब बर्फ पिघलती है। हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ फिर बोला, आप यहाँ बैठकर किसी शिकारी का इंतजार करूंगा। वैसे जब मैं शिकार खेलता हूँ तो ये नहीं देखता शिकार होने वाला मैनेजर है या बावर्ची। आप मेरी तौहीन कर रही हैं, मैनेजर गुर्राया।
लेकिन हमीद कुछ कहे बगैर रज़िया की तरफ मुतवज्जह हो गया। वो बदस्तूर किताब में मुस्तग़रक़ थी। चेहरे से हरगिज़ मुतरश नहीं होता था कि वो उनकी गुफ्तगू सुनती और समझती रही है। लिहाजा एक बार फिर हमीद को सोचना पड़ा कि कहीं वो उसके बारे में गलतफहमी में तो मुब्तला नहीं। आपकी तारीफ? दफतन हमीद ने कनखियों से रज़िया की तरफ इशारा करके मैनेजर से पूछा, और मैनेजर मुतहय्याराना अंदाज में मुंह खोल कर रह गया। फिर हमीद किसी कदर मुस्कुराया और बाईं आंख भी दबाई। बस फिर क्या था? मैनेजर की हैरत झल्लाहट में तब्दील हो गई। साहब, आप किस कुमाश के आदमी हैं? उसने खरखराती हुई आवाज में पूछा। क्या मौजू की तब्दीली पसंद नहीं आई आपको? हमीद ने संजीदगी से पूछा। खुदा के लिए तशरीफ ले जाइए, वरना। वरना क्या? वरना ये कि हम अपने बिजनेस के हुकूक महफूज रखते हैं। किसी लम्हे भी आपको होटल छोड़ देने का नोटिस मिल सकता है। कौन नोटिस लेता है ऐसी बातों का? हमीद ने लापरवाही से कहा। वो निचला होंठ दांतों में दबाए हमीद को घूरता रहा। तारुफ हो जाए तो कैसी रहे? हमीद आहिस्ता से बोला। यह अय्याशी का अड्डा नहीं है, तशरीफ ले जाइए। इस बार उसने बहुत ज्यादा सख्ती का मुजाहरा किया। ए जनाब, खुद को काबू में रखिए। क्या मैं कोई अय्याश आदमी हूँ? दी मैन इज ए सोशल एनिमल। दूसरों से जान पहचान पैदा किए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं कहता हूँ तशरीफ ले जाइए। वो मुट्ठियां भींच कर बोला। मैं आप दोनों को तन्हा नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब? वो मेज पर हाथ मार कर दहाड़ा। प्लीज रजिया की हम शक्ल उछल पड़ी। मैं इख्तिलाज कल्ब की मरीजा हूँ। मैं खमीरा मरवरीद लाऊं? हमीद ने चहक कर पूछा। लेकिन वो बुरा सा मुंह बनाए हुए फिर किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई। सचमुच बेहद मगरूर मालूम होती थी। अब आप चले ही जाइए, वरना अच्छा ना होगा, मैनेजर उठता हुआ बोला। उसके हाथ अब और ज्यादा कांपने लगे थे। हमीद ने सोचा, बात न बढ़ानी चाहिए। पता नहीं फादर हार्ड स्टोर ने उसे यहाँ किस मकसद के तहत भेजा हो। जब वो दरवाजे से गुजर रहा था, मैनेजर ने उसे फिर बुलंद आवाज में मुखातिब किया। वार्निंग है कि उस वक्त उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। उसने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और दरवाजे से गुजर गया। बहरहाल बात उलझन पैदा करने वाली थी। ना तो उसने खुद ही जख्मी के लिए तिब्बी इमदाद फराहम की थी और ना यही चाहता था कि कोई दूसरा उस मामले में दखल अंदाजी करे। हमीद फिर डाइनिंग हॉल में वापस आ गया। अब काफी अंधेरा फैल गया था। हॉल की ज्यादातर मेजें आबाद हो चुकी थीं। वो सीधा काउंटर की तरफ चला गया। काउंटर क्लर्क अपने पाइप में तंबाकू भरने जा रहा था। हमीद ने अपने तंबाकू की पाउच उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कभी प्रिंस हैंनरी भी ट्राई कीजिए। शुक्रिया जनाब। अच्छा, हाँ, तारीफ सुनिए इस ब्रांड की। बहुत बहुत शुक्रिया। वो पाउच से तंबाकू निकाल कर अपनी नाक के करीब ले गया और फिर उसे पाइप में भरता हुआ बोला, उम्दा चीज है, यहाँ तो मिलती ही नहीं। क्यों साहब, अगर ये अपना देसी तंबाकू पाइप में जलाया जाए तो कैसा रहे? लेकिन वो तो एक कश में भक से उड़ जाएगा। पता नहीं पाइप के तंबाकू में नमी कैसे पैदा करते हैं। हमीद कुछ न बोला और काउंटर क्लर्क खामोश होकर पाइप सुलगाने लगा। कुछ देर बाद हमीद ने पूछा, ये ऑयल स्टोव कैसे फट गया था? पता नहीं जनाब। ओह, खूब याद आया। वो कौन साहब थे? जख्मी थे? पता नहीं अब क्या हाल है। मेरा ख्याल है कि शायद आप भी उनके साथ ऊपरी मंजिल पर गए थे। हाँ, गया था। उससे कबल उस लड़की ही के साथ बैठा हुआ था। लेकिन मैं उन लोगों को जानता नहीं, उनके नामों से भी वाकिफ नहीं। लड़की से कुछ देर पहले ही मुलाकात हुई थी। बड़ी शरीफ लड़की है, काउंटर क्लर्क बोला। पता नहीं भला इतनी जल्दी कैसे राय कायम की जा सकती है, हमीद ने बेतकल्लुफी से कहा। मैं तो जानता हूँ ये लोग हर साल सर्दियों में आते हैं। शिकारी हैं? नहीं जनाब, इसी पर तो मुझे हैरत है। वो जख्मी जिसे आपने देखा था, यानी लड़की का बाप नसीराबाद के किसी कॉलेज में प्रोफेसर है। प्रोफेसर नदीम चंगेजी। आलिम आदमी है। भला उसे लोमड़ियों के शिकार से क्या दिलचस्पी हो सकती है? लेकिन सर्दियां गुजारता है यहाँ। जी हाँ, अभी तक तो यही देखने में आया है। लड़की भी साथ होती है? जी हाँ, वो भी होती है। लेकिन आज तक मैंने उसे रंग रलियों में हिस्सा लेते नहीं देखा। इसका भी कोई ऐसा ही नाम होगा, तबस्सुम चंगेजी, चंगेजी, मुजस्सिम चंगेजी वगैरह। पता नहीं। वैसे बूढ़ा उसे मोनी कहकर पुकारता है। मुमकिन है असल नाम मोइना हो। मोइना तो खूबसूरत नाम नहीं कहलाया जा सकता, क्लर्क ने बुझे हुए पाइप को सुलगाते हुए कहा। कुछ देर खामोशी रही। फिर हमीद ने कहा, बड़ी हैरत की बात है कि अभी तक जख्मी के लिए मेडिकल एड नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद वो सुबह को बिल्कुल तरोताज़ा नजर आएगा। क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? पिछले साल कम से कम 15 बार ऐसी ही गैर मामूली हालतों में बाहर से वापस आया था।
अच्छा, तब तो उसने खुद ही मैनेजर को इससे मुताल्लिक कुछ मखसूस हिदायत दे रखी होंगी। कैसी मखसूस हिदायत? यही कि अगर वो खराब हालत में वापस आए तो उसे तनहा छोड़ दिया जाए, मेडिकल वगैरह की फिक्र कतई ना की जाए। हो सकता है जनाब, मेरी मालूमात इससे ज्यादा नहीं है। मुझे गैर जरूरी बातों का कतई फिक्र नहीं होती, अपने काम से काम रखता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है, आप एक बाउसूल आदमी हैं। उसूल की तो बात ही न कीजिए। अब यही देख लीजिए, पूरे 20 साल से मामूल है कि सुबह उठकर पहले गर्म पानी से गरारे करता हूँ और फिर सरसों के तेल से दांत मांजता हूँ। आज तक दांतों में कोई तकलीफ नहीं हुई। सरसों के तेल का क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि यहाँ किसी से उनकी शनासाई भी ना होगी। किसकी शनासाई? प्रोफेसर उसकी लड़की की बात कर रहा था। मैंने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन ठहरिए, वो खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, अक्सर अजनबियों से मैंने बूढ़े को गुफ्तगू करते देखा है। अजनबी? अजनबियों से क्या मुराद है आपकी? यही कि वो क़याम करने वालों में से नहीं होते। अच्छा अच्छा, समझ गया। कुछ देर के लिए वो फिर खामोश हो गए। हमीद अपने पाइप में तंबाकू भरने लगा। आप तो गालबन शिकारी भी नहीं है, काउंटर क्लर्क ने कहा। नहीं, मैं एक शिकारी का दोस्त हूँ। शिकारी साहब अभी यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन अब तो सीजन खत्म हो रहा है। दरअसल अगले साल यहाँ शिकार खेलेगा। फिलहाल इम्कानात का जायजा लेगा। शिकार ही शिकार है जनाब, यहाँ इम्कानात का क्या सवाल। मैं आपके दोस्त को एक पुराने और मुकामी शिकारी से मिलवा दूंगा। हमीद ने अपने सर को जुम्बिश देकर इजहार तशक्कुर किया और निहायत पुरतफक्कर लहजे में बोला, मैं इस बूढ़े प्रोफेसर के लिए परेशान हूँ, पता नहीं किस हाल में हो। बात दरअसल ये है जनाब, आपके साथ मैनेजर साहब भी थे और मुझसे या आपसे ज्यादा इस सिलसिले में उन्हें तशवीश होनी चाहिए। इसी बात का तो गम है कि उन्हें भी तशवीश नहीं। बस तो फिर आप भी बेफिक्र हो जाइए। हमीद ने तवील सांस ली और गमनाक अंदाज में उसकी आंखों में देखकर सर झुका लिया। साहब, आप वाकई बहुत रहमदिल आदमी मालूम होते हैं। यहाँ तो कोई शिकारी यहाँ ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। खून बहता ही रहता है, लाशें गिरती ही रहती हैं। मेरे दोस्त ने इन तराफ में कभी शिकार नहीं खेला, तब फिर वो खेल भी ना सकेंगे। यहाँ से लेकर टेकमगढ़ तक यही कुछ होता है। उस सीजन में न कोई चीखों पर चौंकता है, न खून बहते देखकर किसी के कान पर जूं रिंगती है। वही किस मुसीबत में आप फंसा? हमीद ने उकताहट जाहिर करते हुए कहा। मेरे लिए यही कॉफी मंगवा दीजिए, खाना अपने कमरे में खाऊंगा। आहा, और वो लड़की? कौन सी लड़की जनाब? अच्छा, समझ गया। आपका इशारा शायद उन ईरानी खातून की तरफ है। ईरानी? लाहौल वाला कुव्वत, मैं तुर्क समझा था। जी नहीं, ईरान से आई हैं, मुसन्निफा हैं। भला सा नाम है। खैर, ये मैं रजिस्टर में देखकर बताता हूँ। हमीद कुछ न बोला। क्लर्क रजिस्टर की बरख गिरदानी करता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, नाम ही इतना ही हसीन है, यास्मीन करलिबाश। हसीन है? हमीद ने मुतहराना लहजे में पूछा। क्या नहीं है? क्लर्क आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ होता जा रहा था। हटाओ यार, मुझे तो यास्मीन के नाम पर हमेशा फिनोप्थिलीन की गोलियां याद आ जाती हैं। बड़ी अजीब बात है, क्लर्क ने बड़े खुलूस से तशवीश जाहिर की। दफतन प्रोफेसर की लड़की मोनी दिखाई दी, जो तेजी से उसी तरफ आ रही थी। ना सिर्फ हमीद ने बल्कि काउंटर क्लर्क ने भी खामोशी अख्तियार कर ली। वो उनके करीब पहुंचकर रुकी और बारी बारी दोनों की तरफ देखा। प्रोफेसर, आप कैसे हैं? कुछ बोले? हमीद ने पूछा। पहले से बेहतर हैं, लेकिन खामोश। मेरे कमरे में गर्म कॉफी भिजवाइए और फोन ठीक कराइए, खराब हो गया है। मुझे खामखा दौड़कर नीचे आना पड़ा। ये तो बहुत बुरी बात है, हमीद ने काउंटर क्लर्क की तरफ देखकर कहा। मैं भी इंतजाम करता हूँ, वो जल्दी से बोला। आप बेफिक्र रहें, कॉफी भी भिजवाता हूँ। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बेतकल्लुफी से फरमाइए, हमीद ने मोनी से कहा। शुक्रिया, फिलहाल कुछ नहीं। आपका कमरा भी आपका कमरा भी तो गालबन उसी लाइन में है। अगर जरूरत हुई तो जरूर तकलीफ दूंगी। हमीद ने उस वाक़े के मुताल्लिक फौरी तौर पर कुछ पूछना मुनासिब न समझा। वो चली गई। फिर तकरीबन आधा घंटे के बाद हमीद अपने कमरे में पहुंचा था। दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। उसे तवक्को थी कि लड़की जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और कोई कमरे के सामने ही रुका। दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था, इसलिए हमीद उसे देख ना सका। आ जाओ, मैं मौजूद हूँ, उसने ऊंची आवाज में कहा। पर्दा हटा, लेकिन साथ ही हमीद को भी उछलकर खड़ा हो जाना पड़ा। वो मौनी नहीं थे, एक कद आवर मर्द था, खूंखार आंखों वाला। पर्दा हटाकर बड़े इत्मीनान से कमरे में दाखिल हुआ। क्या मतलब? हमीद उसे नीचे से ऊपर तक घूरता हुआ बोला।
तुम्हारी इजाज़त से आया हूँ, इसलिए किसी झगड़े का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या तुम किसी के मुंतज़िर थे? लेकिन उस करम फरमाई का मतलब ज़ाहिर है कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। बस इतना कहने आया था कि लड़की से दूर ही रहना। किस लड़की की बात कर रहे हो? मोना चंगेज़ी, प्रोफेसर नदीम चंगेज़ी की लड़की। मैं उस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही तुम काउंटर के करीब उससे गुफ्तगू करते रहे थे। शायद तुमने ये शाम भी उसी के साथ गुजारी थी। अच्छा, वो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हामिद खुश होकर बोला। बड़ा प्यारा नाम है। उसने अपना नाम नहीं बताया था। आने वाली ने उसे कहरा आलूद नजरों से घूरते हुए कहा, संजीदगी इख्तियार करो, तुम्हारी लाश तक का पता ना चलेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस तरह तो कफन के पैसे भी बचेंगे और मैं उनसे प्राइज बांड खरीद लूंगा। हमीद ने जहरीली सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वैसे वो महसूस कर रहा था कि आने वाले ने दिल ही दिल में फौरी तौर पर कोई फैसला किया है। फिर वो उसकी छलांग ही की जद पर कैसे आ जाता। बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटा था और हमला आवर मुंह के बल फर्श पर जा गिरा था और दोबारा उठने ही वाला था कि खुद हमीद ने उस पर छलांग लगाई। फिर हमला आवर की पेशानी फर्श से टकराई। उस टकराव से पैदा होने वाली आवाज ने कमरे की महदूद फिजा में अच्छी खासी गूंज पैदा की थी। मेजर सईद, मुझे लोग मेजर सईद कहते हैं। हामिद उसे फर्श पर रगड़ता हुआ बोला। उसकी गर्दन में कैंची डाल दी थी और मुसलसल दबाव डाल रहा था। हमला आवर की पेशानी फर्श से ही लगी रही। फिर फर्श से टकराने का अमल जारी ही था कि हमीद ने मोना की आवाज सुनी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यकीनन हमीद ने इस बार ज्यादा कुव्वत सिर्फ की थी। मगलूब की कुव्वत मदाफ़ियत अब बिल्कुल खत्म हो गई। हाथ पैर ढीले पड़ गए। क्या हो रहा है? मोना की आवाज इस बार करीब से आई थी। हमीद अपने शिकार को छोड़कर हट गया। वो बेहोश हो चुका था, लेकिन हमीद का ख्याल था कि उसने मसलहतन हाथ पैर डाल दिए हैं। मोना हैरत और खौफ के जेर असर खड़ी कांपती रही। तुम उसकी जुबान से इसके अलावा और कुछ ना निकल सका। फिक्र ना करो, हमीद ने झुककर बेहोश आदमी को चित करते हुए कहा। उसने देखा कि उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही वो लड़खड़ाई और कई कदम पीछे हट गई। खौफजदा आंखों में एतराफ शनासाई की झलकियां मौजूद थीं। ये कौन है? हमीद ने कुछ देर बाद पूछा। मम, लेकिन ये यहाँ क्यों आया था? धमकी देने कि अगर अब मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की तो मेरा सर तोड़ देगा। ओहो, लिहाजा मुझे उसके जगराफिये से वाकिफ होना चाहिए। खुदा के लिए तुम चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। क्यों? बस यूं ही, मेरी बात मानो। तुमने अच्छा नहीं किया। यहाँ कई आदमी ऐसे हैं जो उसके लिए जहन्नुम का दहाना खोल देंगे। खूब, हमीद उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। मैं कहती हूँ होश में आओ, फौरन चले जाओ यहाँ से। मुनासिब यह है कि इसके होश में आने से कबल तुम ही यहाँ से चली जाओ और मेरी फिक्र ना करो। मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? वो दोनों हाथों से अपनी कनपटियां थपथपाकर बोली। क्या तुम हमारी हिलाकत का बाइस बनना चाहते हो? मोना, प्लीज गेट आउट, हमीद ने दरवाजे की तरफ हाथ हिलाकर कहा। देखो, खुदा के लिए जाओ, वो उसीले लहजे में कहकर उसकी तरफ झपटा। मोना बौखला कर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। फिर उसके बाहर निकल जाने पर हमीद ने दरवाजा बंद किया और चटखनी चढ़ा दी। वैसे ये एहसास अब भी जहन के किसी गोशे में मौजूद था कि वो राहदारी में दरवाजे के सामने ही रुक गई है। उसने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और बेहोश आदमी की तरफ मतवज्जा हो गया। जामा तलाशी के नतीजे में एक भरा हुआ रिवाल्वर और एक पर्स उसके पास से बरामद हुआ था। पर्स में मामूली रकम और कुछ कागजात थे। हमीद उसके दोबारा होश में आने का मुंतजिर था। रिवाल्वर गोद में रखे बैठा सोच रहा था कि कोई खतरनाक खेल मालूम होता है। आखिर ये लोग क्यों नहीं चाहते कि बूढ़े को तिब्बी इमदाद मिल सके? पहले मैनेजर ने धमकियां दी थी, फिर काउंटर क्लर्क उसी मसले पर बड़ी लापरवाही से गुफ्तगू करता रहा था और अब ये। बेहोश आदमी ने कराह कर करवट बदली थी। हमीद ने रिवाल्वर संभाल लिया, जिसका रुख उसके सीने की तरफ था। अजनबी की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थीं। जैक बैग वो उछल कर उठ बैठा। हमीद रिवाल्वर की नाल कलाई पर रखे उसे घूरे जा रहा था। मैं तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने की इजाजत दे सकता हूँ, उसने चंद लम्हों बाद कहा। अजनबी चुपचाप उठा और मेज के करीब वाली कुर्सी पर जा बैठा। हमीद ने कहना शुरू किया। मैं कतई नहीं जानता कि वो लड़की कौन है। ये भी नहीं जानता कि तुमसे उसका क्या ताल्लुक है। सरे शाम मैंने एक जख्मी आदमी को देखा था जिसे दो आदमी सहारा देकर यहाँ लाए थे। लड़की उस वक्त मेरी मेरी ही मेज पर थी। इससे मुझे मालूम हुआ कि वो उसका बाप था। हमीद खामोश हो गया। अजनबी भी खामोशी से उसे घूरता रहा। कभी कभी उसकी आंखें हमीद के चेहरे से हटकर रिवाल्वर की नाल पर जा ठहरती। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ, हमीद थोड़ी देर बाद बोला,
यहाँ के लोग ये क्यों नहीं चाहते कि बूढ़े को मेडिकल एड मिले? मेरे लिए एक बिल्कुल नई इत्तला है, अजनबी ने आहिस्ता से कहा। क्या तुम्हें मैनेजर ने मेरे खिलाफ नहीं उकसाया? हरगिज नहीं, मैं उसे उससे ज्यादा नहीं जानता कि वो उस होटल का मैनेजर है। फिर तुम मुझ पर क्यों चढ़ दौड़े? मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मर्द मोना से करीब होने की कोशिश करे, और उसके लिए तुम इस हद तक भी जा सकते हो? यकीनन। लेकिन अगर उसका बाप मर रहा हो तो उसके लिए तिब्बी इमदाद तक फराहम करने के रवादार नहीं? मुझे इसका कुछ इल्म नहीं, मैंने सिर्फ इतना सुना था कि वो वापस आ गया है। कहाँ से वापस आ गया है? पता नहीं, 3 दिन पहले कहीं बाहर गया था। क्या वो तुम्हें जानता है? नहीं, वो मुझे नहीं जानता। तो तुम उसे मर जाने दोगे? मैं कुछ भी नहीं जानता इस बारे में। अगर मैं उसके लिए कुछ करना भी चाहूँ तो मोना उस पर तैयार नहीं होगी। वो मुझसे बेहद अंदाज नफरत करती है। ये क्यों? यही दस्तूर है दुनिया का, वो ठंडी सांस लेकर बोला। जिन्हें अपनाना चाहो वो दूर भागते हैं, जिनकी परवाह ना करो वो साए की तरह साथ लगे रहते हैं। हम्म। हमीद ने सर को जुम्बिश दी और उसकी आंखों में देखता रहा। मैं उस वक्त से उसके पीछे हूँ जब वो सिर्फ 10 साल की थी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, हमीद ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं नहीं जानता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमीद बोला। ऐसी कैफियत में जिंदगी गुजारने वाले शहीद कहलाते हैं। अगर उसी कैफियत में शादी भी हो जाए तो जुर्म के गुलाम कहलाने लगते हैं। तुम आखिर हो कौन? अजनबी ने हमीद को घूरते हुए पूछा। सईद, मेजर सईद कहलाता हूँ। ना अभी तक शहादत के दर्जे पर फायज हो सका हूँ और ना डोमेस्टिक कमीशन ही लिया है, लिहाजा। वैसे तुम कोई शरीफ ही आदमी मालूम होते हो, हमीद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बाज मजबूरियां अक्सर बुरा भी बना देती हैं। मैं नहीं समझी। नसीराबाद के मोअज़्ज़ज़ तरीन आदमियों में मेरा शुमार है। आमतौर पर लोग मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं, लेकिन उस फेल पर मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता। किस फेल पर? यही मोना वाला मामला। प्रोफेसर से शादी की दरख्वास्त करो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती, मुतनफ़्फ़र है मुझसे। ओह मेरे खुदा, तुमने मुझको बताया था कि प्रोफेसर को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है और कुछ लोग उसमें हारिज हो रहे हैं। यहाँ का मैनेजर। मुझे कुछ करना चाहिए। लाओ, मेरा रिवॉल्वर वापस कर दो, वो गैर कानूनी तौर पर नहीं रखा गया मेरे पास। ओह मेरा पर्स भी। वो अपनी जेब टटोलने लगा। हमीद ने पर्स उसकी तरफ उछालते हुए कहा, गिन लो अपनी रकम। लेकिन उसने उसे हाथों पर रोक कर जायजा लिए बगैर जेब में डाल लिया। हमीद सोच रहा था कि वो बहुत मुतमईन नजर आ रहा है, हरचंद के अब रिवॉल्वर का रुख अब भी उसी की तरफ था। अच्छी बात है, हमीद ने उठते हुए कहा। रिवॉल्वर हॉल में पहुंचकर तुम्हारे हवाले करूंगा। मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन कीना तोज नहीं, अजनबी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। हमीद उसके पीछे चल रहा था। नीचे पहुंचकर उसने रिवॉल्वर उसे वापस देते हुए कहा, क्या आप तुम मैनेजर के कमरे में चलोगे? नहीं, उससे पहले मैं किसी डॉक्टर को लाऊंगा। मैनेजर से मैं बाद में निपटूंगा। उसने मुझे धमकी दी थी कि कई खतरनाक किस्म के शिकारी मेरी राह में हायल हो सकते हैं अगर मैंने प्रोफेसर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। खून की नदियां बह जाएंगी। अजनबी बोल रहा है, आओ मेरे साथ। फिर वो तेजी से मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ा था। मैनेजर अपने कमरे में तन्हा मिला। ईरानी मुसन्निफा यास्मीन कज़-लिबाश या हमीद की दानिश में रज़िया वहाँ नहीं थी। अजनबी और मैनेजर एक दूसरे को घूरते रहे। फिर मैनेजर की नज़र हमीद पर पड़ी और उसने हमीद को देखकर पूछा, फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? प्रोफेसर नदीम चंगेज़ी के लिए मेडिकल एड क्यों फराहम नहीं की गई? अजनबी ने तेज लहजे में कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग। शट अप, मैं अपनी बात का जवाब चाहता हूँ। मैं इसका पाबंद नहीं हूँ। होटल का इंतजाम मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, समझे जनाब। अगर आपको हमदर्दी है प्रोफेसर से तो जाइए और कीजिए मेडिकल एड का इंतजाम। अगर उसे कोई हादसा भी पेश आया है तो वो होटल की हदूद से बाहर, मेरे फ़राइज़ की हदूद से दूर। प्रोफेसर की लड़की चाहती तो खुद ही मेडिकल एड हासिल कर सकती थी। सब मुझसे ही पूछने दौड़े आते हैं। जहन्नुम में गया प्रोफेसर और उसके मामलात। मैंने सुना है कि तुमने इन्हें धमकी दी थी। अजनबी ने हमीद की तरफ इशारा करके कहा। जरूर दी थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ बैठी हुई एक मोअज़्ज़ज़ खातून के लिए कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बरजस्ता झूठ, खुदा के गजब से डरो, हमीद ने आंखें निकाल कर बोला। अगर वो खातिन उर्दू समझ सकती तो तो बताता। तुम मुझसे गुफ्तगू करो, अजनबी फुर्र रहा। जनाब, आपका लहजा। अच्छी बात है, अब पुलिस ही तुमसे सब कुछ पूछ लेगी। मैं कहता हूँ, आखिर यकबैग मैनेजर के चेहरे से एहसास बेबसी का इजहार होने लगा। मैं जो कुछ भी कहता हूँ कर गुजरता हूँ। अच्छी बात है, जरूर पुलिस की मदद हासिल कीजिए।
मैं कह रहा हूँ जाकर प्रोफेसर की लड़की से बात कीजिए, उसकी मौजूदगी में मुझे क्या हक हासिल है कि मैं कुछ कर सकूँ। अच्छी बात है, मेजर सईद अजनबी ने हमीद से कहा। आप यहीं ठहरिए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। यहाँ यानी मैनेजर के ऑफिस में? जी हाँ, मैं उस मामले को समझना चाहता हूँ। वो बाहर चला गया। हमीद और मैनेजर खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। मैं बड़ी जिम्मा हूँ प्यारे, हमीद कुछ देर बाद मुस्कुराकर बोला। उस आदमी का तो मैं नाम भी नहीं जानता। मैं सब समझता हूँ। क्या समझते हैं? आप सब मिलकर मेरी जिंदगी को ख्वाहा हो गए हैं। तो आप ऐसा क्यों समझते हैं? पता नहीं ये बूढ़ा मर्दूद यहाँ क्यों आम रखता है। मैं कसीरुल अयान और दिल का मरीज हूँ, खुदा रहम करे मेरे हाल पर। जब ये बात है तो इस किस्म की जिम्मेदारियां क्यों लेते हैं अपने सर? हामिद ने बड़े हमदर्दाना अंदाज में कहा। बस अंधेरे में एक तीर फेंका था, उस तवक्का पर कि नतीजा कारआमद ही साबित होगा। मैनेजर चंद लम्हे हाँफता रहा, फिर खुश होठों पर जुबान फेंका बोला। 3 साल पहले की बात है। ये बूढ़ा पहली बार यहाँ आया था। जिस रात आया था उसी रात को कुछ लोग जबरदस्ती मुझे कंपाउंड से में उठा ले गए थे। या जहाँ ले गए थे वहाँ एक सियाहपोश पहले से मौजूद था। मुझे देखते ही उसने एक बड़ा सा चाकू निकाला और कहा कि मैं बूढ़े प्रोफेसर को अच्छी तरह जहन नशीन कर लूँ। जब भी वो फिजारों में क़याम करना चाहे मुझे उसके लिए कमरा मुहैया करना होगा, ख्वाह होटल के स्टाफ ही के किसी आदमी का कमरा क्यों ना खाली कराना पड़े। फिर बड़ी धमकियों के साथ दूसरी हिदायत मिली थी। मैनेजर खामोश होकर हाँफने लगा। हामिद उसे बगौर देख रहा था। उसका ख्याल था कि मैनेजर झूठ नहीं बोल रहा। दूसरी हिदायत क्या थी? उसने कुछ देर बाद पूछा। वही जो आप देख रहे हैं, वही जो मेरे लिए फांसी का फंदा बन गई है। यानी बूढ़े को कोई हादसा पेश आए तो हत्तुल इम्कान उसे पुलिस से दूर ही रखा जाए, या हत्तुल इम्कान मेडिकल एड भी उस वक्त मुहैया की जाए जब प्रोफेसर या उसकी बेटी खुद उसकी ख्वाहिश जाहिर करें। उस सिलसिले में जो भी अखराजात हो उनका हिसाब अलग रखा जाए। अदायगी पाई पाई हिसाब करके दी जाएगी। और मैं भुगत रहा हूँ, पता नहीं कब तक भुगतना पड़े। एक बार उसने धमकाया था और आप 3 साल से वही सब कुछ करते चले आ रहे हैं। जी नहीं, बूढ़े के दौरान क़याम में वो अक्सर सामने आता रहता है। अभी पिछली रात ही मेरे ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था। पता नहीं किस तरह दरवाजे को कुफल तक खोल लेता है। हमीद किसी सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, क्या उसने ये कहा है कि उसके बारे में किसी को कुछ बताया न जाए? यकीनन कहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। अब मैं कहीं रोड पर ना आ जाऊं। मेरा खुदा, कैसी भयानक जिंदगी है, कैसी भयानक जिंदगी है। और वो ईरानी औरत, मैं उससे बहुत ज्यादा खाइफ हूँ। क्यों? उससे क्यों खाइफ है? बेहद पुरस्कार मालूम होती है। मेरा ख्याल है कि वो उसी सियाहपोश से किसी किस्म का ताल्लुक जरूर रखती है। यकीनन यही बात है। मैं क्या करूं? हामिद ने महसूस किया कि अब उसे अपने आसाब पर काबू नहीं रहा। पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। आपको आराम की जरूरत है, हामिद ने हमदर्दाना लहजे में कहा। है तो, लेकिन मैं क्या करूं? आप क्या समझती हैं, अगर उसे मालूम हो गया तो वो क्या करेगा? मुझे फिर इसी तरह उठवा ले जाएगा और अजियतें देकर हिलाक कर देगा। यही नहीं बल्कि मेरे खानदान वाले भी उसके मुजालिम से महफूज ना रह सकेंगे। यही धमकी दी थी उसने? जी हाँ। तब मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप आराम कीजिए। मैं सारी रात आपके कमरे की निगरानी करूंगा। लेकिन मेरे खानदान के दूसरे अफराद शहर में रहते हैं, उनका क्या होगा? अरे तो उसे मालूम ही कैसे होगा कि आप ये सब कुछ मुझे बता चुके हैं। लेकिन वो साहब तो प्रोफेसर के लिए डॉक्टर लाने गए हैं। उनका उसका कोई मुखबिर उस तक इसकी इत्तला पहुंचा देगा। खैर, उसके लिए भी कुछ कर लिया जाएगा। वैसे आखिर ये बूढ़ा प्रोफेसर है क्या भला? खुदा उसे गारत करे। यकीन कीजिए, आज तक इससे ज्यादा गुफ्तगू का मौका नहीं मिला। जरूरी बातों के अलावा और कुछ भी नहीं। हमेशा सर्दियों में आता है। जी हाँ, मैनेजर ने खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखते हुए कहा। जरा आहिस्ता बोलिए। दरवाजा बंद कर दूं? हमीद ने पूछा। न नहीं, खुला रहने दीजिए। मेरी मौजूदगी में खुद को महफूज समझिए। मैं भी एक माहिर निशाना बाज हूँ, फौजी हूँ। मेरे मरने के बाद आपने 10 लाशें गिरा भी दी तो क्या? खैर, क्या आपको कुछ अंदाजा है कि बूढ़ा सर्दियों में यहाँ क्यों आता है? मैं कतन कुछ नहीं जानता। खुदा के लिए उस तस्करे को खत्म करके मुझे सोचने दीजिए कि अब क्या होगा। सोचिए, हमीद ने बेबसी से कहा। मैनेजर थोड़ी देर तक सर पकड़े बैठा रहा, फिर बोला। आखिर मैं क्या सोचूं? मेरे सोचने से क्या होगा? वो यकीनन मेरे खानदान वालों को परेशान करेगा, मुझे मार डालेगा। बेहद खौफनाक आदमी है। आवाज है उसकी या शेर की दहाड़, खुदा की पनाह। वो जब भी याद आता है उसकी आवाज कानों में जरूर गूंजती है। आप तो मुझे भी दहलाए दे रहे हैं जनाब, हमीद ने कहा।
मैनेजर अभी कुछ कहने ही वाला था कि वही अजनबी कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक आदमी और भी था, छोटा सा बैग हाथ में लटकाए हुए। मैं डॉक्टर ले आया हूँ, उसने हमीद से कहा, लेकिन मेरा जाना मुनासिब नहीं। तुम जाओ, लेकिन वहाँ ठहरोगे नहीं। अच्छी बात है। हमीद ने कुर्सी से उठते हुए तवील सांस ली और डॉक्टर से कहा, मेरे साथ आइए जनाब। प्रोफेसर के कमरे का दरवाज़ा बंद था। हमीद ने दस्तक दी, किसी ने दरवाज़ा खोला और इस बार से मोना का खौफजदा चेहरा नजर आया। तुम? उसने सरगोशी की। क्यों? लेकिन क्यों? डॉक्टर साहब आ गए हैं, अपने डैडी को दिखाइए, हमीद ने कहा और डॉक्टर के लिए रास्ता छोड़ता हुआ बोला, कुछ देर जरूर हो गई, लेकिन यही मुनासिब रहेगा कि आप अपना इत्मीनान कर लें। उसने लड़की के चेहरे पर इत्मीनान के आसार देखे। मेरी मौजूदगी जरूरी नहीं, हमीद ने डॉक्टर से कहा। मैं वही मैनेजर के ऑफिस में आपका मुंतजिर रहूंगा। फिर लड़की ने शायद कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए ही थे, लेकिन आवाज नहीं निकली थी। सब ठीक है, हमीद हाथ हिलाकर बोला, शब्बा खैर। वो फिर मैनेजर के कमरे में वापस आ गया। अजनबी वहीं मौजूद था। उसने सवालिया नजरों से हमीद की तरफ देखा। सब ठीक है, मैं डॉक्टर को वहां छोड़ आया हूँ, हमीद बोला। शुक्रिया, अजनबी ने कहा और सामने वाली दीवार पर नजरें जमाए हुए कुछ सोचता रहा। हमीद ने मैनेजर की तरफ देखा। उसकी हालत अच्छी नहीं थी, मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी और होंठों पर पपड़ियां सी नजर आने लगी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद थूक निकलने की टर्च साफ सुनाई देती। अब आप लोग भी आराम फरमाइए, उसने एक बैग भर्राई की आवाज में कहा। आराम? हमीद ने हैरत से कहा और अजनबी की तरफ देखने लगा। वो भी मैनेजर की तरफ मुतवज्जा हो गया था। मैं डॉक्टर की वापसी का मुंतजिर हूँ, उसने झल्लाए हुए लहजे में कहा। तो फिर आप आराम जरूर कीजिए। अजनबी का लहजा जहरीला था। गालिबन आप डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं सुनना चाहते। मैं क्यों ना सुनना चाहूंगा? मैनेजर की आवाज में झल्लाहट थी और बेबसी थी। अजनबी ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और दूसरी तरफ देखने लगा। हमीद फिलहाल कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझता था, इसलिए खामोश ही रहा। वो महसूस कर रहा था कि मैनेजर को सचमुच आराम की जरूरत है। हम हॉल में भी डॉक्टर का इंतजार कर सकते हैं, हमीद ने अजनबी से कहा। नहीं, यहीं करेंगे। मुझे ये भी तो देखना है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। मैनेजर ने फिर खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और थूक निकल कर रह गया। मेरा ख्याल है कि इस शरीफ आदमी को सचमुच आराम की जरूरत है, हमीद ने कहा। अजनबी जवाब देने के बजाय दूसरी तरफ देखने लगा। इतने में कदमों की चाप सुनाई दी और डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। क्यों? अजनबी ने कुर्सी से उठते हुए मुस्तरवाना अंदाज में पूछा। हालत मखदूश है, डॉक्टर ने जवाब दिया। चंदन में कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। गैर मामूली तौर पर खून ज़ाया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी ना हो सकेगा। आप आप सेंट्रल हॉस्पिटल ले जाएं। सुना तुमने? अजनबी मैनेजर मैनेजर की तरफ मुड़कर दहाड़ा और वो गरीब कुर्सी समेत उलटते उलटते बचा। जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, डॉक्टर बोला। कहिए तो मैं यहीं से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दूंगा। जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए। यकीनन फ़ोन कर दीजिए, अजनबी ने मैनेजर को घूरते हुए कहा। अब मैं देखता हूँ कि किस तरह जवाबदेही करते हो। मैनेजर ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। जिस्म का राशा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। डॉक्टर फोन पर नंबर डायल करने लगा। हमीद महसूस कर रहा था कि अब शायद खुद मैनेजर को भी तिब्बी इमदाद की जरूरत पेश आए। हुआ भी यही। डॉक्टर माउथ पीस में एम्बुलेंस के लिए कह रहा था कि मैनेजर का सर कुर्सी की पुश्त से ढलक गया। दोनों हाथ इधर उधर झूल गए। अब इसे भी देखिए, हमीद ने पुरसुकून लहजे में डॉक्टर को मुखातिब किया। ये क्या मतलब? रिसीवर के रीडर पर रखते हुए डॉक्टर का हाथ कांप गया। फिर वो झपट कर मैनेजर के करीब पहुंचा। मेरे खुदा, वो भर्राई आवाज में बोला, ये तो खत्म हो गया। क्या? अजनबी बौखलाकर खड़ा हो गया। क्या? अजनबी बौखलाकर खड़ा हो गया। सडन हार्ट फेलियर। पर फिर क्या होगा? मैं क्या बता सकता हूँ, डॉक्टर ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा और बाथरूम की तरफ रवाना हो गया। अजनबी और हमीद खामोशी से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर हमीद टेलीफोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। करीबी पुलिस स्टेशन के नंबर उसे याद थे। राब्ता कायम होने में देर न लगी। बूढ़े के बारे में कुछ न कहना, अजनबी जल्दी से बोला, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हमीद ने सर को जुम्बिश दी और मैनेजर के फेलियर के बारे में कहता रहा। अजनबी उसे बागौर देख रहा था। हमीद रिसीवर रखकर उसकी तरफ मुड़ा। क्यों? उसने पूछा। बूढ़े के मुतालिक भी बता देने में क्या हर्ज था? फिर तुम्हें यह भी बताना पड़ता कि बूढ़े के मुतालिक इतनी देर में क्यों इत्तला दी गई। तो तुम बूढ़े को अस्पताल पहुंचाओगे? उसके अलावा और क्या चाह रहा है? अस्पताल वाले पुलिस के इल्म में लाए बगैर दाखिल ना करेंगे, क्योंकि वो जख्मी है, हमीद ने कहा। और फिर इस डॉक्टर को मैं देख लूंगा। जैसा मुनासिब समझो, हमीद ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और वो मैनेजर की तरफ देखने लगा।
मरने के बाद उसके चेहरे पर खौफजदगी के आसार साफ पड़े जा सकते थे। हमीद ने उसके खानदान वालों के लिए हमदर्दी महसूस की और सोचने लगा, क्या यहाँ उसकी मौजूदगी उन वाक़यात से भी ताल्लुक़ रखती है? ये सब कुछ इत्तेफ़ाक़न पेश आया है। आखिर ये इस तरह मर क्यों गया? अजनबी कुछ देर बाद बड़बड़ाया। इसी पर तो मुझे भी हैरत है। प्रोफेसर के लिए मेडिकल ऐड की मुखालफत करना, मेडिकल ऐड आई और तो इस हद तक एहतजाज किया कि दुनिया ही से चला गया। मुखालफत की कोई वजह भी तो बताई थी? कुछ भी नहीं। तुम्हारी अदम मौजूदगी में तो यही मालूम करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन सब बेसूद। बड़ी अजीब बात है, अजनबी ने सर को जुम्बिश देकर कहा। लेकिन हमीद ने उसके चेहरे पर तशवीश के आसार न देखे। दूसरे दिन 11 बजे तक प्रोफेसर नदीम चंगेजी को होश नहीं आया था। अस्पताल में उसे मुसलसल ऑक्सीजन दी जा रही थी। उसे जनरल वार्ड में रखा गया था और मोना को वहां उसके पास रहने की इजाज़त भी मिल गई थी। हमीद से टकराने वाला अजनबी हर वक्त अस्पताल ही के किसी हिस्से में देखा जाता। हमीद भी वहीं था, लेकिन उसने कोशिश की थी कि अजनबी की नज़र उस पर न पड़ने पाए। होटल के मैनेजर की लाश पोस्टमार्टम के लिए रोक ली गई थी। उसके सिलसिले में पुलिस ने होटल में बहुत ही सख्त किस्म की पूछगिछ की थी। यास्मीन कज़लिबाश भी उससे न बच सकी थी। किसी ने कह दिया होगा कि वो ज़्यादातर मैनेजर के ऑफिस में देखी जाती रही थी। बहरहाल पुलिस ने सख्ती से ताकीद की थी कि लाश का पोस्टमार्टम हो जाने से कबल कोई भी होटल की रिहाइश तर्क न करे। प्रोफेसर नदीम चंगेजी के बारे में अभी तक कोई सवाल नहीं उठा था। वह एक बहुत ज़्यादा बीमार आदमी की हैसियत से अस्पताल में पहुंचाया गया था। वैसे हमीद के ख्याल के मुताबिक यह भी मुमकिन था कि उस पुरस्कार अजनबी ने अपनी हिकमत अमली की बिना पर किसी किस्म का शुबा पैदा न होने दिया हो। डॉक्टर ने तो पिछली रात ही अपना बयान देते वक्त प्रोफेसर या उसकी अलालत का तस्करा नहीं किया था। जाहिर है कि यह अजनबी ही के इशारे पर हुआ होगा, वरना डॉक्टर की मौजूदगी में भी मैनेजर से उस मसले पर बहस हो चुकी थी। यह अजनबी कौन है? क्या बला है आखिर? हमीद सोच रहा था। दफतन एक नए शुबे ने जहन में सर उबाला। कहीं अजनबी भी तो वही मकसद नहीं रखता जिसके लिए मैनेजर की जान गई। मैनेजर यही तो चाहता था कि प्रोफेसर का मामला पुलिस तक न पहुंच सके, और अजनबी की मुदाखलत की बिना पर वो अस्पताल तो पहुंच गया था, लेकिन पुलिस को उसकी हवा भी नहीं लगने पाई थी। तो क्या यह उसी सियाहपोश का कोई गुर्गा हो सकता है? उसी नहिज पर सोचते हुए हमीद ने फैसला किया कि वह अजनबी के इल्म में लाकर मोना से मिलने की कोशिश करेगा। और फिर जनरल वार्ड के सदर दरवाजे पर दोनों का टकराव हो ही गया। तुम कहाँ जा रहे हो? अजनबी ने रास्ता रोकते हुए कहा। अंदर, हमीद ने लापरवाही से जवाब दिया। देखो, मुझसे ना उलझो वरना पछताओगे। मैं लड़की ही से प्रोफेसर की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। उसे अभी होश नहीं आया। मैंने कहा था कि मैं मोना ही से उसकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। क्या पिछली रात वाला तल्ख तजर्बा याद नहीं रहा? हमीद मुस्कुराकर बोला। पिछली रात मैं किसी कदर नशे में था। अच्छी बात है, अब तुम जब तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लाओगे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। खामोश रहो। अजनबी की भौहें तन गईं। वाह प्यारे, हमीद बाई आंख दबाकर मुस्कुराया। हमको बाज़ औक़ात गुस्से पर कतई प्यार नहीं आता। तो फिर मुझे तुम्हारा भी इंतजाम करना ही पड़ेगा। तुम क्या कर सकोगे मेरा इंतजाम? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तो ये किया था मेरा इंतजाम, कि मुझसे मुस्तफ़ना हो जाने की दरख्वास्त की थी। ओहो, तो निकाले गए थे? एक बैग अजनबी का रवैया बदलता महसूस हुआ। जनाब, हमीद सीने पर हाथ रखकर किसी कदर झुकता हुआ बोला। क्यों निकाले गए थे? बेहतरी छोटी छोटी वजूहात थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुझे अपने कर्नल की बीवी से इश्क हो गया था, और वो भी 14वीं के चांद में चरखे और बुढ़िया के बजाय मेरी तस्वीर देखने लगी थी। खूब, वो हमीद को ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला। तो अब जरिए मुआश क्या है? बदमाशी। वजाहत करो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमीद का मूड इतलक बदल गया। क्या मतलब? मैं मोना के पास जा रहा हूँ, सामने से हट जाओ। मैं यहाँ झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें देख लूंगा। अजनबी एक तरफ हटता हुआ बोला। हमीद दरवाजे से गुजरकर आगे बढ़ता चला गया। उसे बैट पर नंबर का इल्म था, इसलिए ठीक उसी जगह पहुंचकर रुका जहां वो दोनों मौजूद थे। बूढ़ा चित पड़ा था। ऑक्सीजन के सिलेंडर से रबड़ की नलकी उसके चेहरे तक आई थी और उसका सीना मामूल के मुताबिक फूल पिचक रहा था। मोना बिस्तर के करीब ही बैठी हुई थी। रात भर जागते रहने की वजह से चेहरे पर इत्मिलाल के अलावा और किसी किस्म का तासर नहीं पाया जाता था। हमीद को देखकर वो चौंक पड़ी थी और फिर हमीद के शाने से उसके उक़ुब में देखा था। ऐसा करते वक्त देखने का अंदाज बिल्कुल बदल गया था। आंखों में सहम जाने की सी कैफियत पाई जाती थी।
حمید پھرتی سے مڑا اور سچ مچ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہی اجنبی اس سے 2 یا 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ پھر مونا کی طرف مڑ کر بولا، میں تمہارے لیے بہت دکھی ہوں مونی، بتاؤ میں کیا کروں؟ مونا کچھ نہ بولی، لیکن اس کی آنکھوں سے جھانکنے والے خوف میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی وقت ہوش آیا تھا پروفیسر کو؟ حمید نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ مونا نے نفی میں سر کو جنبش دی، زبان سے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے تکلفی سے کہو، حمید نے کہا۔ اب اس نے اجنبی کی طرف پشت پھیر لی تھی۔ کچھ نہیں، وہ ہکلائی، اب بھی حمید کے شانے کو اوپر دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً حمید نے پھر اس کی آنکھوں میں تغیر سا محسوس کیا اور ساتھ ہی کوئی ٹھوس چیز اس کی کمر سے آ لگی۔ حمید نے مڑے بغیر کنکھیوں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی۔ اجنبی اس سے لگا کھڑا تھا، دروازے کی طرف۔ اجنبی سرد لہجے میں بولا، وہ ٹھوس چیز ریوالور کی نال کے علاوہ اور کیا ہو سکتی تھی؟ ریوالور اجنبی کے کوٹ کی جیب میں تھا اور نال جیب ہی سے چبھوئی جا رہی تھی۔ حمید بے چون و چرا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کی اور اجنبی کی رفتار میں کوئی فرق نہیں تھا اور ریوالور کی نال بدستور کمر سے لگی ہوئی تھی۔ جنرل وارڈ سے نکل کر انہوں نے طویل برآمدہ طے کیا۔ اسی طرح عمارت سے نکل ہوتے ہوئے سڑک پر آئے۔ حمید خاموش تھا، اس کے ہونٹ مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد کتھئی رنگ کی ایک چھوٹی سی کار کھڑی نظر آئی۔ ڈرائیور کی سیٹ پر ایک بھدا آدمی بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے سگار پھینک دیا اور تھوک کی پچکاری مارتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ پھر ان کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ حمید کو اسی طرح گاڑی میں بیٹھنا پڑا اور بیٹھ جانے کے بعد بھی وہ ریوالور کی نال کا دباؤ اپنے پہلو پر محسوس کرتا رہا۔ کیا ارادے ہیں؟ حمید نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ کسی ویرانے میں پہنچ کر بات کریں گے، اجنبی وررایا۔ دیکھو دوست، حمید طویل سانس لے کر بولا، میں کہتا ہوں خیر جانے دو، مجھے دیکھنا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اپنا مطمئن نظر تو میں تم پر پہلے ہی واضح کر چکا ہوں، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ حمید نے پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ اب اسے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ محض رقابت سے تعلق نہیں رکھتا۔ پروفیسر بے ہوش ہے، اس سے کچھ پوچھا نہیں جا سکتا۔ مونا ہی سے کسی قسم کی معلومات کا ذریعہ بن سکتی ہے، لہذا کسی غیر متعلق آدمی کا اس تک پہنچنا کسی نامعلوم آدمی یا خود اسی اجنبی کو پسند نہیں۔ اس کی نظر عقب نما آئینے پر پڑی۔ پیچھے کئی اور گاڑیاں بھی تھیں۔ سڑک اتنی کشادہ نہیں تھی کہ گاڑیاں برابر سے چل سکیں، لہذا جب بھی اس کی کار کی رفتار کم ہوتی پچھلی گاڑیوں کے ہارن چنگھاڑنے لگتے۔ اچانک ایک دوراہے پر پہنچ کر کار بائیں جانب مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد حمید نے یوں ہی بغیر ارادہ پھر عقب نما آئینے کی طرف دیکھا۔ اب بھی ایک گاڑی پیچھے نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور آنے والے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا۔ دفعتاً پچھلی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یہ سڑک کسی قدر کشادہ تھی۔ اس کار کی رفتار کچھ کم ہوئی اور پچھلی گاڑی کو راستہ دینے کے لیے ایک طرف کر لیا گیا۔ دوسری گاڑی برابر سے گزری چلی گئی۔ اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسی کار سے ہارن دینے کی ضرورت پیش آ گئی جس میں حمید سفر کر رہا تھا۔ ڈرائیور پے در پہ ہارن دیتا رہا، لیکن اگلی گاڑی نے نہ تو راستہ ہی دیا اور نہ اس کی رفتار ہی تیز ہوئی۔ پاگل ہو گیا ہے مردود، اجنبی وررایا۔ فائر کر دوں پچھلے وہیل پر؟ حمید نے مشورہ دیا۔ شاید یہی کرنا پڑے، اجنبی نے کہا۔ پھر یک بیک چونک کر حمید کو گھورنے لگا۔ ڈرائیور نے پھر ہارن دیا لیکن بے سود۔ اگلی گاڑی پہلے ہی کس انداز میں چلتی رہی۔ تم مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ حمید بولا۔ تمہیں یہاں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تم جانتے ہو، مونا جانتی ہے، اور تیسرا تو چل ہی بسا۔ اگلی گاڑی میں کون ہے؟ غالباً لیڈی ماؤنٹ بینٹن۔ سنجیدگی اختیار کرو ورنہ ٹریگر دب جائے گا، اجنبی نے کہا، اور حمید بائیں پسلی میں ریوالور کی چبھن کچھ زیادہ محسوس کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا، اور سنو، میں نہیں جانتا، اور سنو، اگر یہ سب کچھ محض مونا کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یقین کرو کہ میں اس سے کبھی نہ ملوں گا۔ اب اتنی آسانی سے گلو خلوصی نہیں ہو سکتی، اجنبی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ یعنی کیا مطلب؟ اب میں یہ دیکھوں گا کہ تم حقیقتاً کون ہو۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، تمہیں تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، اجنبی نے کہا۔ پھر جھلائے ہوئے لہجے میں ڈرائیور سے بولا، کھیکھر کھیکھر۔ حمید اس بے معنی لفظ پر چونکا تھا، لیکن قبل اسے کچھ سمجھ بھی سکتا۔ اگلی کار کے دائیں جانب ایک دھماکہ ہوا اور وہ بائیں جانب دبتی چلی گئی۔ اس کار کے ڈرائیور نے ڈیش بورڈ کے خانے سے کوئی چیز نکال پھینکی تھی۔ اب وہ دوبارہ وہی کرنے جا رہا تھا۔ پھر دھماکہ ہوا، لیکن اس بار اگلی گاڑی بائیں جانب دبنے کے بجائے سڑک پر آڑی رک گئی اور ڈرائیور کی سیٹ سے کسی نے چھلانگ لگائی۔ حمید والی گاڑی کے ڈرائیور نے پورا بریک نہ لگایا ہوتا تو وہ اگلی گاڑی سے جا ٹکراتی۔ صرف 2 فٹ کے فاصلے پر رکی تھی۔
फिर दफातन हामिद ने महसूस किया कि उसके बाएं पहलू पर अजनबी के रिवाल्वर का दबाव खत्म हो गया है। अजनबी का रिवाल्वर वाला हाथ अब खिड़की के बाहर था। उसने अगली कार के ड्राइवर को कवर कर रखा था। हामिद वाली गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरकर अगली कार के ड्राइवर की तरफ बढ़ रहा था। यकबैग हामिद को होश आ गया और वो बैठे ही बैठे अजनबी पर टूट पड़ा। रिवाल्वर वाले हाथ पर खास तौर से ध्यान दिया था, लिहाजा रिवाल्वर सड़क पर जा पड़ा। ड्राइवर दूसरी ड्राइवर की तरफ जाने के बजाय तीर की तरह रिवाल्वर की तरफ झपटा था, लेकिन उसे कामयाबी न हुई और वह रिवाल्वर को उठाने के लिए झुका ही था। दूसरी गाड़ी के ड्राइवर की ठोकर उसकी थोड़ी पर पड़ी और वो चीखता हुआ दूसरी तरफ उलट गया और फिर ना उठ सका। दोनों हाथों से थोड़ी दबाए हुए पैर पटकता रहा। उधर हामिद महसूस कर रहा था कि उसका हरीफ भी कमजोर नहीं है और उसने अपने बारे में गलत नहीं कहा था कि वो पिछली रात पिए हुए था। दफातन बाहर से आवाज आई, तुम लोग भी उतर आओ वरना खून हो जाएगा एक आध का। हामिद ने महसूस किया कि अजनबी ढीला पड़ गया। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर पिछली सीट का दरवाजा खोले खड़ा था और उसके दाहिने हाथ में हामिद ने अजनबी का रिवाल्वर भी देखा। उसने अजनबी को धक्का दिया और वो सड़क पर जा पड़ा, लेकिन फिर फौरन ही तनकर खड़ा हो गया। हामिद गाड़ी में बैठा रहा। उसने महसूस किया कि दूसरी गाड़ी के ड्राइवर की तवज्जो उसकी तरफ थी भी नहीं। वो तो सिर्फ अजनबी को कवर किए खड़ा था और अजनबी की गाड़ी का ड्राइवर तो इस तरह सर डालकर पड़ा था कि फिर जुम्बिश ही ना की। पता नहीं बेहोश हो गया था या यूं ही बना पड़ा था। तुम लोगों ने ये पटाखे क्यों फेंके थे? अगली कार का ड्राइवर गुर्राया। ये एक कद आवर और तवाना जिस्म का आदमी था। आंखों पर तारीक शीशों की ऐनक थी और ड्राइवर वाली वर्दी में मलबूस था। तुम हमें रास्ता क्यों नहीं दे रहे थे? अजनबी ने सख्त लहजे में कहा। इस पर तुमने पटाखे फेंके? क्यों? अगर गाड़ी खड्ड में जा पड़ती तो? मैं कहता हूँ अपनी राह लो वरना अच्छा नहीं होगा, अजनबी दांत पीस कर बोला। अब तन्हा तो जाऊंगा नहीं, तुम भी जाओगे मेरे साथ? क्या मतलब? मेजर सईद प्लीज, ड्राइवर ने हामिद को मुखातिब करके कहा। क्या आप नीचे उतर कर उस शरीफ आदमी के हाथ पैर नहीं बांधेंगे? हामिद नीचे उतर आया। वो उस ड्राइवर को पहले ही घूरता रहा था। मेरी गाड़ी से डोर का लच्छा निकाल लाइए, आपको तकलीफ तो होगी, डिग्गी में है। तो ये सब कुछ? अजनबी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ ड्राइवर की गुंजीली आवाज़ में दबकर रह गई। हामिद अगली कार की तरफ बढ़ता चला गया। डिग्गी उठाकर रेशमी डोर की लच्छी निकाली और फिर उसकी तरफ पलट आया। अपने दोनों हाथ पुश्त पर ले जाओ, ड्राइवर अजनबी से कह रहा था। ये नामुमकिन है, मुझे हलवा ना समझो, अजनबी बोल रहा। लेकिन दूसरे ही लम्हे में हामिद ने डोर का लच्छा फेंक कर उसकी कनपुटी पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अजनबी लड़खड़ाया, फिर समझने नहीं पाया था कि ठीक उसी जगह दूसरा हाथ पड़ा। इस बार वो इस तरह लड़खड़ा कर गिरा था जैसे तवाज़ुन की हिस्स खो बैठा हो। काफी है, ड्राइवर हाथ हिलाकर बोला। कनपट्टी की ये ज़र्ब क्लोरोफार्म से भी ज्यादा मौसर साबित हुआ करती थी। वो बेहोश हो गया। बड़ा सदा हुआ हाथ था, ड्राइवर बोला। मुर्शिद का फैज़ है, हमीद ने कहा और झुककर उसके हाथ पर बांधने लगा। अजनबी गाड़ी के ड्राइवर के साथ भी यही रवैया अख्तियार किया गया। आप उन दोनों को मेरी गाड़ी तक पहुंचाने में मदद दीजिए, ड्राइवर ने कहा। क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? हमीद ने ड्राइवर को घूरते हुए पूछा। जनाब ने परवरिशी मेरी गोद में पाई है, ड्राइवर का जवाब था। हमीद उछल पड़ा। सख्त गुस्सा आया था अपने डेविडपन पर, लेकिन वो करता भी क्या? मेकअप में तो फरीदी का पूरा ढांचा ही बदल कर रह जाता था। न कद का सही सुराग मिलता और न तनतोष का। चलने का अंदाज तक बदल जाता था। फिर आवाज क्या पहचानी जा सकती? ओहो, हमीद हाथ मलता हुआ बोला। तो एक बार फिर मैं चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हूँ। वक्त नहीं है, जल्दी करो। अगर कोई और गाड़ी इधर आने के लिए तो जहमत होगी। लो ये लिफाफा रखो, इत्मीनान से देखना। उन दोनों को मेरी गाड़ी तक पहुंचाओ और तुम्हें उसी गाड़ी से वापस जाना है। जहां से इस पर बैठे थे वहीं छोड़ देना। फिर बेहोश ड्राइवर के हाथ पैर भी बांधे गए और उन दोनों को फरीदी की गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया गया। आप यहाँ कब से मुकीम हैं? हमीद ने पूछा। जब से तुम हो? मैं नहीं समझा। हम दोनों एक ही जहाज से यहाँ पहुंचे थे। मेरे खुदा, हमीद मुंह खोल कर रह गया। बस अब जाओ, फरीदी ने कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। मजबूरन हमीद को भी वापस होना पड़ा। बेहतर चुभते हुए सवालात घुटकर रह गए थे। वो उस अंधाधुंध भाग दौड़ के बारे में तफसीलात मालूम करना चाहता था। अचानक वो लिफाफा, लेकिन वो रास्ते में रुकना नहीं चाहता था। अस्पताल के करीब पहुंचकर रफ्तार कम कर दी। फरीदी की हिदायत के मुताबिक गाड़ी को ठीक उसी जगह छोड़ना चाहता था जहां से रवाना हुई थी। अस्पताल के लॉन में एक गोशे में बैठकर उसने लिफाफा चेक किया। उसमें पर्चा ही नहीं बल्कि तीर की शक्ल की एक सुनहरी टाई पिन भी थी। वो चंद लम्हे उसे उलट पुलट कर देखता रहा, फिर उसके साथ वाली तहरीर देखने लगा। तहरीर फरीदी ही की थी। लिखा था,
प्रोफेसर की लड़की से करीब तर होने की कोशिश जारी रखो, और वो सारा रहमान को करीब से जानती थी। फिलहाल एक नामालूम आदमी उसकी निगरानी कर रहा है। मेरा ख्याल है कि वो नहीं चाहता कि कोई अजनबी उस लड़की से किसी किस्म का ताल्लुक रखे। प्रोफेसर, मेरी नई दरियाफ्त है, इसे भी देखना पड़ेगा। ये टाइप इन हर वक्त तुम्हारे इस्तेमाल में रहना चाहिए। अगर गैर मामूली हालात सामने आए तो हैरत का इजहार ना होना चाहिए। दोस्तन फौक्तन तुम्हें हिदायत मिलती रहेंगी। हमीद ने पर्चे का पुर्जा पुर्जा करके एक तरफ उछाल दिया और टाइप उनको फिर घूरने लगा। सुनहरा तीर, ओह गोल्डन एरो। तो अब उसे उस निशानी समेत मंजर आम पर आना पड़ेगा, यानी वो खुद को उसी गुरूर से मुताल्लिक जाहिर करने की कोशिश करेगा। सारा रहमान, वो बड़बड़ाया और एक तवील सांस लेकर खिला में घूरने लगा। इरफान आर्टिस्ट का मासूम चेहरा याद आया और वो कातला याद आई जिसने अपनी जान बचाने के लिए एक खतरनाक आदमी को कत्ल कर दिया था, जिससे अफसोस था कि उसकी वजह से एक मासूम आदमी को पुलिस ने जेल में डाल रखा है। वो जिसने अपना गुमशुदा पर्स हासिल करने के लिए एक दूसरे आदमी को आलाकार बनाया था। वो जो फरीदी से मिलना चाहती थी और उसी धोखे में अपने अंजाम को पहुंची कि वो फरीदी से मिलने जा रही थी। उसका पर्स याद आया जो अब भी फरीदी के पास था, लेकिन क्या था उस पर्स में? एक मामूली सी रकम जिसकी गुमशुदगी एक मुफलिस तरीन आदमी के लिए भी इतनी बायसी तशवीश न होती कि वो उसे दोबारा हासिल करने के लिए किसी किस्म का खतरा मोल ले बैठता। अगर उस पर्स की अहमियत तीर के निशान की वजह से थी तो ये बात भी समझ में आने वाली नहीं। गोल्डन एरो का नाम उन दोनों उसी तरह मशहूर था जैसे आलमी तंजीम माफिया के बारे में दुनिया का हर आदमी किसी कदर मालूमात जरूर रखता है। उसने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और पाइप में तंबाकू भरने लगा। कुछ देर बाद चौंका। टाई पिन अब भी मुट्ठी में दबा हुआ था। उसने अपना टाई पिन टाई से निकालकर जेब में डाल लिया और उसकी जगह लिफाफे से बरामद होने वाला पिन लगाते हुए सोचा, अगर मोना उसकी अहमियत से वाकिफ है तो अब वो उससे भी दूर भागेगी, जैसे उस अजनबी से कतराती रही थी। कितनी खौफजदा नजर आती थी उसकी मौजूदगी में। पाइप का तंबाकू राख हो चुका था। हमीद ने फैसला किया कि वो मोना की मौजूदगी में तीरनुमा टाई पिन इस्तेमाल नहीं करेगा। पाइप की राख झाड़कर वो उठ खड़ा हुआ। अब वो फिर जनरल वार्ड की तरफ जा रहा था। मोना उसे देखकर खड़ी हो गई। मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। कुछ देर कबल भी हमीद ने उससे देखा था, इतनी बुरी हालत तो नहीं थी। अब तो ऐसा लगता था जैसे बरसों की बीमार हो। तब तुम वापस आ गए, वो बादक़त हकलाई। मजलूमों की हिमायत और हिफाजत करना हमेशा से मेरा उसूल रहा है। मजलूमों से क्या मतलब? वो खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखती ही बोली। मैंने उस दौरान में बहुत कुछ महसूस किया है। क्या महसूस किया है? यही कि तुम खाइफ हो। मुझे उस आदमी के बारे में बताओ जो मुझे यहाँ से ले गया था। वो है कहाँ वो? तुमने महसूस किया होगा कि मैंने किसी चूहे की तरह उसके हुक्म की तामील की थी। मैंने महसूस किया था वो मुझे रिवाल्वर के जोर पर यहाँ से ले गया था। मैंने यही महसूस किया था, वो मुस्तवाना अंदाज में बोली। फिर क्या हुआ? 300 फुट गहरी खड़ उसका मुकद्दर बन गई। कैसे? उसने मुझ पर गोली चलाई थी, 3 फायर किए थे। फिर मैंने उसे उठाकर खड़ में फेंक दिया। अब क्या होगा मेरे खुदा? उसने कहा और आंखें बंद करके आगे पीछे झूलने लगी। ए होश में आओ, हमीद ने उसका शाना पकड़कर हिलाते हुए कहा। फिर वह बिल्कुल इसी तरह चौंक पड़ी थी जैसे गहरी नींद से जागी हो। तब तुमने उसे मार डाला? हाँ, मैं हर उस आदमी को मार डालूंगा जो तीर की शक्ल का टाई पिन इस्तेमाल करता हो। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, वह चारों तरफ देखती हुई गिड़गिड़ाई। हमीद ने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी और उसकी आंखों में देखता रहा। तब तुम क्यों मार डालोगे हर उस आदमी को? मैं अपने उस मासूम दोस्त की मौत कभी नहीं भुला सकता, जिसके पहलू में एक सुनहरा तीर पेवस्त हो गया था। मेरे खुदा, वो कितनी अच्छी थी। उसने उन लोगों के जाल से निकलना चाहा था और उन्होंने उसे मार डाला। तुम किसकी बातें कर रहे हो? मोना हाँफते ही बोली। थी एक लड़की। बहरहाल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारी वजह से एक ऐसा आदमी हाथ लगा जो गोल्डन एरो बतौर टाइपिन इस्तेमाल करता था। मैं कुछ नहीं समझी। तुम समझकर क्या करोगे? उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें बहुत चाहता है, लेकिन तुम उससे मुतनफ़र हो और वो तुम्हें इतना ज्यादा चाहता है कि तुम्हारे करीब किसी दूसरे मर्द की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब बकवास थी, वो बेसाख्ता बोली और फिर खौफज़दा नजरों से चारों तरफ देखने लगी। फिर हमीद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसे तुमसे किस किस्म का लगाव था? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बोली। तो फिर मैं ये समझ लूं कि तुम भी उन लोगों से ताल्लुक रखती हो? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। वो चेहरे पर से हाथ हटाती ही बोली।
خیر خیر، تم بہت پریشان ہو، میں اب تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن سارا کے قاتل اب مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ سارا؟ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا؟ سارا رحمان تو نہیں؟ کیا تم اسے جانتی تھی؟ حمید نے حیرت ظاہر کرنے کی بہت شاندار اداکاری کی۔ وہ پھر بیٹھ گئی اور کسی بت کی طرح ویران ویران آنکھوں سے خلا میں گھورے جا رہی تھی۔